ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 93A ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੁਪਰਟੈਕ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਢਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 40 ਮੰਜ਼ਲਾ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3700 ਕਿਲੋ ਵਿਸਫੋਟਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। टेरी होवेगी नाजायज उसारी, मलबे विच बदलणगे ट्विन टावर, धमाके नाल ढेरी होणगे टावर। की होवेगा मंसर, की धमाके नाल दहल जावेगा नोएडा, की नुकसानियां जाणगियां नेड़लियां इमारतां। डॉक्टर क्यों जता रहे हैं चिंता, इंजीनियर्स दे अगे वड्डी चुनौती। ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ तमाम ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਦਾ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਮਲਬੇ 'ਚ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਨੂੰ 9 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਢਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਟਾਵਰ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਢਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 40 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਟਾਵਰ ਢਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਟਾਈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਾਈਮਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਹਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 21 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣਗੇ, 7-7 ਸੈਕੰਡਰੀ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਢਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 7 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 7:10 ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੀਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7:20 ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7:30 ਵਜੇ ਲਿਫਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2:30 ਵਜੇ ਟਾਵਰ ਢਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟਾਈਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਾਵਰ ਢਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਦੋਹਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਵਰ ਢਹਿ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ट्विन टावर ने जिन्होंने ढਹਿ किया जाना है। 21 प्राइमरी धमाके होंगे, 7-7 सैकंडरी धमाके होंगे। दोनों टावरों के विच पहली बार है कि इन्नियां वड्डियां इमारतां नूं विस्फोट के जरिए भारत दे विच ढਹਿ किया जाएगा। नोएडा के ट्विन टावर जिन्होंने कल नूं ढਹਿ किया जाना है। कल दोपहर 2:30 बजे धमाके किए जाएंगे ते इस बिल्डिंग नूं ढਹਿ किया जाएगा। नोएडा के सैक्टर 93A ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੁਪਰਟੈਕ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਢਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 28 ਅਗਸਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 40 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਹ ਟਾਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3700 ਕਿਲੋ ਵਿਸਫੋਟਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਿਸਫੋਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਾਈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, 21 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣਗੇ ਦੋਵਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਵਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-7 ਸੈਕੰਡਰੀ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣਗੇ, जिस तो बाद कुछ ही सैकंड दे विच ये इमारतां ढਹਿ हो जाणगियां। प्रियंका साडे सहयोगी नोएडा तो लाइव जुड़े हुए हैं। प्रियंका, क्या कुछ आपके पास जानकारी, क्या कुछ तस्वीर है इस समय? जो ट्विन टावर कल उनको जो है उनको ब्लास्ट किया जाएगा, तो अभी की क्या तस्वीर है और कल किस तरीके से ये सब हो पाएगा, क्योंकि लोगों में भी काफी चिंता है।
जी बिल्कुल, मैं पहले तो आपको देखिए तस्वीरें दिखा देती हूँ, क्योंकि ये तस्वीरें जो है हमारे दर्शकों को कल के बाद देखने को नहीं मिलेंगी। ये वो ट्विन टावर हैं जिनको डिमोलिश किया जाना है कल ठीक 2:30 बजे, और इसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है। 3700 किलो से ज्यादा का विस्फोटक जो है, जो ब्लास्टिंग मटेरियल है, वो लगाया गया है और 9 सेकंड में बिल्डिंग जो है वो धराशायी हो जाएगी। यहाँ लोगों को चिंता किस वजह से, ये भी मैं तस्वीरें दिखाऊं। आप देखेंगे बिल्कुल सटे हुए जो सफेद कपड़ों में ढके हुए आपको मकान नजर आ रहे हैं, ये दरअसल वो टावर है जिनकी प्रॉक्सिमिटी यानी जिनकी नजदीकी इस दोनों ट्विन टावर के साथ बहुत ज्यादा है। ऐसे में ये खतरा है कि जब ब्लास्ट होगा तो इनके घरों को उसका नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ आपको तस्वीर दिखाऊं, जो ट्विन टावर में सफेद और काले कपड़े आपको नजर आ रहे हैं, ये जियो टेक्सटाइल फैब्रिक है जिसका काम ही यही होता है कि विस्फोट जब हो तो वो मलबे को बाहर की तरफ ना जाने दिया जाए। ऐसे में जो डेमोलिशन कंपनीज हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी तैयारी है कि वाइब्रेशन ना के बराबर हो। जब इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरेगी, जाहिर तौर पर गिरते हुए कहीं ना कहीं वाइब्रेशन होगी, कंपन होगी, उससे नुकसान कम से कम हो, ये कोशिश है। इसके अलावा मलबा बाहर की तरफ ना गिरे, ये भी बताया जा रहा है। वाटरफॉल डेमोलिशन होगा, यानी कि जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं कि ब्लास्ट हुआ और बिल्डिंग इस तरीके से फूटी, ऐसा नहीं होगा। ये जो दोनों बिल्डिंग आपको दिख रही हैं, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरेंगी, सड़कों की तरफ गिरेंगी। लेकिन अथॉरिटीज का साफ तौर पर कहना है कि उनकी पूरी तैयारियां हैं कि लोगों की असुविधा बहुत कम हो और कम से कम लोगों को यहां पर नुकसान हो। जी अर्शदीप। प्रियंका, क्या कुछ लोगों के लिए हिदायतें हैं? जैसे आप दिखा रहे हैं कि बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, लोगों के मकान हैं, फ्लैट्स हैं, तो उनके लिए भी कोई हिदायतें जारी की गई हैं या लोगों में किस तरीके की चिंता है? उनको कहा गया है कि वो थोड़ी देर के लिए, जिस समय ये ब्लास्ट होगा, वो यहां से दूर जाएं, या इस तरीके की कोई हिदायतें हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये जो आप सोसाइटी देख रही हैं, एमरल्ड कोल्ड सोसाइटी यहाँ पर है। यहाँ के तकरीबन 7000 फैमिलीज यहाँ पर रहती है और इन सबको कल सुबह 7 बजे तक इस पूरी जगह को खाली करना है। कई लोग अभी यहाँ से जा चुके हैं, कई लोगों के जाने का सिलसिला जारी है। तो कल सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक इन सबको अपने फ्लैट्स को, अपने घरों को छोड़कर जाना है। 4 बजे जब ब्लास्टिंग हो जाएगी, जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद जो डेमोलिशन कंपनीज हैं वो आके एक सर्वे करेंगी, देखेंगी कि किस तरीके का नुकसान है, किस तरीके का माहौल है, क्या सेफर है कि वो रेसिडेंट्स को वापस बुलाए। ये तमाम पहलुओं को देखा जाएगा और उसके बाद ही रेसिडेंट्स को वापस बुलाया जाएगा। लेकिन रेसिडेंट्स की सबसे बड़ी चिंता जो है वो ये बनी हुई है कि आप वाइब्रेशन तो कम कर लेंगे, आप मलबे को भी बाहर निकाल लेंगे, लेकिन धूल का जो गुबार होगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी जैसे ही थोड़ी सी खराब होती है, लोगों में बीमारियां ट्रिगर हो जाती हैं। ऐसे में जब इतनी ऊंची इमारतें गिरेंगी तो जाहिर तौर पर धूल का गुबार होगा, धुआं हर जगह होगा, धूल का होगा, तो वो सबसे ज्यादा टेंशन लोगों के लिए बनी हुई है। और यही बात जो एक्सपर्ट्स है उनका भी कहना है कि सिर्फ प्रे ही कर रहे हैं कि हवाओं की मूवमेंट पे सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर बारिश हो जाती है तो लोगों को राहत होगी, हालांकि बारिश का प्रेडिक्शन 29 को बताया जा रहा है। तो ऐसे में ये एक प्रॉब्लम है जो लोगों को यहां पर फेस करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए तो आसपास की जो 6 सोसाइटी है उन लोगों को साफ हिदायत पुलिस की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से दी गई है कि वो लोग ब्लास्टिंग के समय अपने बालकनीज में ना आए, अपनी छतों पर ना आए, इसको शूट करने के चक्कर में या सेल्फियां लेने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये इसका असर कहां तक जाता है वो अभी नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही ये भी हिदायत दी गई है कि अगले कुछ टाइम तक, कुछ घंटों तक, कुछ दिनों तक बालकनीज में बाहर निकलना, कसरत करना, आउटिंग करने को इग्नोर करें जब तक कि धूल पूरी तरीके से सेटल डाउन नहीं हो जाती। और जैसा खुला आसमान आज देख रहा है वैसे ही दोबारा देखने को नहीं मिलता, तब तक लोगों को हिदायतें हैं कि वो घरों से बाहर निकलने को अवॉइड करें ताकि वो गंभीर बीमारियों से बच सके। जी अर्शदीप। जी बिल्कुल प्रियंका, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन की तरफ से बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं ताकि नुकसान कम से कम हो। ये भी जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतने बड़े ट्विन टावर्स हैं और इस तरीके का ब्लास्ट शायद पहली बार किया जा रहा है, इस तरीके से कोई इमारत गिराई जा रही है, पहली बार गिराई जा रही है, तो मलबा भी बेहद ज्यादा होगा, तो उसको किस तरीके से हटाया जाएगा या कितना समय लगेगा उसको हटाने में? ब्लास्ट तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन इस सबको क्लियर कैसे किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए आप एक बार जब बिल्डिंग देखेंगे तो आप अंदाजा लगाएंगे कि जब ये बिल्डिंग नीचे गिरेगी चूर चूर होके तो इसका मलबा भी, जो अगर लेमैन की भाषा में मैं समझाऊं तो 2, 3 से 4 मंजिला तक तो सिर्फ मलबा ही मलबा इसका रहने वाला है। ऐसे में निस्तारण के लिए, इसके यूजर्स के लिए नोएडा अथॉरिटी ने पूरा प्लान बनाया हुआ है। यहाँ तकरीबन 80,000 टन मलबा होगा इन ट्विन टावर के गिरने के बाद। उसमें से 60% जो है, 30% जो है वो नोएडा अथॉरिटीज के पास जाएगा, जहां पर
साइंटिफिक प्रोसेस से मलबे से लोहे को निकालने का काम होगा और उसी लोहे को बेचकर 4000 किलो लोहा लगभग बताया जा रहा है, तो उसी लोहे को बेचकर एडिफिस जो कंपनी डेमोलिशन कर रही है वो अपनी लागत भी वसूलेगी। इसके अलावा बाकी का जो मलबा होगा वो इसी जगह बना रहेगा। बाद में ये भी प्लान किया जा रहा है कि जब उससे साइंटिफिक प्रोसेस से लोहा निकाल लिया जाएगा, काम की चीजें निकाल ली जाएंगी, तो शायद यहाँ पर पार्क भी बने। लेकिन फिलहाल मलबे के निस्तारण की अगर बात की जाए तो दो तरीके से ही है, कुछ यहाँ रहेगा, कुछ अथॉरिटी पे एक आइसोलेटेड जगह को मार्कअप किया गया है, वहां पर वो पूरा रहेगा और वहां से जो साइंटिफिक प्रोसेस होता है मलबे से लोहे को निकालने का या बाकी चीजों को, काम की चीजों को निकालने का, वो प्रोसेस वहां से किया जाएगा। 3 महीने का समय अभी एस्टिमेट किया जा रहा है कि 3 महीने तो यहां से मलबे को साफ होने में लगेंगे ही लगेंगे। और जिस तरीके से हमने बताया कि पार्क बनाने की भी योजना यहां इन फ्यूचर हो सकती है। जी ਜੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ के लिए। ਤਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 40 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਨੇ, 40 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਸਟ ਕਰਕੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟਰਫਾਲ ब्लास्ट होएगा, वाटरफॉल डेमोलिशन होएगा, यानी कि आसपास ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਟਰਫਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ। 21 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਦੋਵਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-7 ਸੈਕੰਡਰੀ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਲਬਾ ਹੈ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਲਬਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਲਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਿੰਡੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂਏ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਇਹ ਟਾਵਰ ਨੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਇਹ ਟਾਵਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਲ 2:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਾਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਮਲਬਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 7 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਲਿਫਟਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2:30 ਵਜੇ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਾਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है सर, तो किस तरह से आप लोग यहाँ पे मुआयना करने आए हैं और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है या इस मामले में किस तरह से आप लोग अध्ययन कर रहे हैं? सीएसआईआर टीम को बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश है कि ये डिमोलिशन का जो काम है जनहित में कैसे सुरक्षित तरीके से किया जाए, उसके लिए टेक्निकल असिस्टेंस की क्या जरूरत है, वो जो एजेंसीज यहाँ पे लगी है उसको टेक्निकल असिस्टेंस देने की जिम्मेदारी सीएसआईआर की टीम को, सीबीआरआई की टीम को, सिम्फर की टीम को ये दिया गया है। तो आज हम लोग
इसमें हम लोग इसको ऐसा एक बहुत बढ़िया साइंटिफिक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं एंड एक लार्ज डाटाबेस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को डिप्लॉय करते हुए, ताकि फ्यूचर के जितने भी काम है इसके लिए हम एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस जारी कर सके, बना सके। तो हम लोग अभी बेसिकली सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को कहाँ पे लगाएं, कैसे बेस्ट तरीके से डाटा इसको ले सके, हम लोग बेसिकली उसके लिए सर्वे कर रहे हैं। तो अभी इस टाइम पे हम लोग ATS बिल्डिंग के पास में हैं और इसमें 5-6 हम लोग टोटल खूब सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगा रहे हैं। उसमें से 17 जियोलॉजिकल जियोटेक्निकल सिस्मोग्राफ्स भी हैं, ट्राइक्सल ट्रांसड्यूसर्स भी हैं, IMU यूनिट्स भी हैं, कुछ ब्लैक बॉक्सेस भी हैं। तो उन सब इंस्ट्रूमेंट्स का बेसिकली हम लोग चाह रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट का जो लोकेशन है उसको हम पहले आइडेंटिफाई कर लें और एक बार देख लें करके, क्योंकि उस दिन समय नहीं मिलेगा, हम लोग पहले से उन सब चीज़ों को फाइनलाइज कर लेंगे। सर, ये जो जीपीएस सिस्टम है, जिस जीपीएस सिस्टम से किस तरह से आप लोग मुआयना करते हैं, क्या देखते हैं? आप प्लीज बताएं सर। This will measure the distance from where we are going to. This actually GPS is only global positioning system, ओके, and it will give you the coordinate where you any हम point. लोग इससे आज क्या Okay, ना? मार्किंग करके रखते जा रहे हैं कि कहाँ So पे इंस्ट्रूमेंट लगाना है। we are going to mark all the point using GPS, and we are measuring from which distance from the distant from the edge of the building how far you are going to put. ओके। So this we are going to use, we are using this GPS. तो मैंने एक तरह से कह सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षित तरीके से इस बिल्डिंग को ध्वस्त करना है। उस वक्त में एक तरह से कहा जा सकता है कि क्या क्या मानक होंगे और किस तरह से यहाँ पर तीव्रता होगी, उस सबको आप लोग माप रहे हैं। हाँ, बेसिकली जब ये ध्वस्त होगा, इम्प्लोजन जब होगा, तो उस टाइम पे नेचुरली कुछ ना कुछ ग्राउंड वाइब्रेशंस भी होंगे, कुछ एयर ओवर प्रेशर्स भी होंगे, राइट। तो वो कितना होगा, कितना सुरक्षित होगा, जिस तरीके से हमने प्लान किया है, एनालिसिस किए है, उसके एक प्रोजेक्शंस हैं, क्या वो प्रोजेक्शन से हम मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यदि मैच कर रहे हैं तो कितना मैच कर रहे हैं, वो सारी एक्यूरेसी सब इंस्ट्रूमेंटेशन से पता चलेगी। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲਸ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। सुपरटेक ट्विन टावर 28 तारीख को ढाया जाएगा। समय निर्धारित हो गया है, लेकिन सुपरटेक ट्विन टावर जो है वो 3 सोसाइटी से घिरा हुआ है। पहली सोसाइटी है सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट, दूसरी सोसाइटी है ATS विलेज और तीसरी सोसाइटी है पार्श्वनाथ प्रेस्टीज। इस समय हम पार्श्वनाथ प्रेस्टीज में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ रेजिडेंट्स हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ प्रिकॉशन मेजर लिए जा रहे हैं, इसके अलावा क्या कुछ उनकी तैयारी है अपने स्तर पर, और यहाँ पर जिस दिन ब्लास्ट होगा उस दिन क्या स्थिति रहने वाली है, क्या डर है लोगों में या उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आप और हम सभी लोग जानना चाहते हैं। इसके लिए हम यहाँ सीधे पहुंचे हैं, सभी लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले यहाँ के सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे शुरुआत करते हैं। सर, 28 तारीख को ब्लास्ट होना है, समय निर्धारित है, तमाम चीजें हो चुकी हैं, पुलिस ने अपनी प्रिपरेशन कर ली, सोसाइटी स्तर पर क्या कुछ तैयारी की जा रही है? धन्यवाद। मेरा नाम रजनीश नंदन है, पार्श्वनाथ प्रेस्टीज का प्रेसिडेंट हूँ एसोसिएशन का। देखिए, तैयारी 2 तरह की हो रही है। पहली तैयारी तो सोसाइटी को और सोसाइटी में जो रह रहे हैं लोग उनको कैसे सेफगार्ड करना है, तो हम लोगों ने एक छोटी सी एडवाइजरी निकाली और कल एक विस्तृत एडवाइजरी निकालेंगे। लेकिन जो ATS फेसिंग ब्लॉक्स हैं उनको हम लोग ग्रीन कवर कर रहे हैं और जो फ्रंट फेसिंग है उसको भी ग्रीन कवर कर रहे हैं हम लोग, सो दैट कि धूल मिट्टी अगर कुछ आए तो उससे बचे। फिर हम लोग सारे लोग स्विमिंग पूल्स हैं और जो कुछ ग्रीन एरियाज है उसको कवर अप कर रहे हैं। जितने लिफ्ट रूम हैं या वाटर टैंक्स हैं उसको दरवाजे बंद या खिड़कियों को ठीक करा के बंद करा रहे हैं हम लोग। क्यूरियोसिटी बहुत रहती है जिस दिन ब्लास्ट होगा, और ये भारत में पहली बार हो रहा है जब कोई बिल्डिंग ध्वस्त की जाएगी। सो क्यूरियोसिटी और डर दोनों चीजें साथ में रहेंगी, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? क्यूरियोसिटी ये है कि पहली बार हो रहा है, तो अभी तक तो सब लोगों ने आज तक YouTube पे ही देखा हुआ है। अब पहली बार आंखों से, खुली आंखों से देखेंगे, उसका बात ही अलग है। और डर ये है कि बस हेल्थ को लेके इश्यूज है। जिस तरह से बोला जा रहा है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग नीचे गिर रही है तो चारों तरफ धूल मिट्टी, और अभी कोविड होके हटा है तो लोग इतने ज्यादा नहीं है, हेल्थी नहीं है, तो उसके लिए जो हो रहा है वो अच्छा किया जा रहा है। डर इसी चीज का सिर्फ हेल्थ को लेकर कि इसके बाद में इफेक्ट्स क्या होंगे। जैसे मैं खुद ही अस्थमैटिक हूँ तो मैं सोच रही थी मैं यहाँ रहूं कि चली जाऊं, क्योंकि धूल मेरे लिए सबसे बड़ा कारण है। सर, जिस दिन ब्लास्ट होगा बताया जा रहा है कि धूल का गुब्बार रहेगा और जाहिर तौर पे ये सोसाइटी बिल्कुल सटी हुई है, तो आप अपनी तरफ से क्या कुछ प्रिकॉशंस ले रहे हैं?
नहीं, दरअसल ऐसा है कि जैसे जैसे जानकारी आ रही है नहीं, कुछ लोग अब यहाँ अभी सर बता रहे थे कि 150-200 आदमी या 300 आदमी का खाना है। यहाँ 1 किलोमीटर पर पंचशील कॉलेज है जी, इंटर कॉलेज, वहाँ भी मतलब पार्किंग का 300 गाड़ियों का इंतजाम है। कुछ लोगों का जी एग्जैक्ट गिनती बतानी बहुत मुश्किल है, फिर भी कुछ लोगों का वहाँ भी खाने का इंतजाम है। वहाँ मेरा बच्चा ही पढ़ाता है और हमने तो संडे में यहाँ से निकलना है कि हमारी एज फैक्टर काउंट कर रहे हैं नहीं कि ये धूल मिट्टी जो है शायद बर्दाश्त ना हो पाए, तो यही है। और आप लोग कहाँ जाएंगे और कितने दिन के लिए शिफ्ट कर रहे हैं? 2 दिन के लिए वहाँ जाएंगे, पंचशील इंटर कॉलेज। अच्छा, वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे? हाँ जी। तो पूरे परिवार के साथ करेंगे? हाँ जी, परिवार के साथ जी। और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। सर, आप लोगों कैसे देख रहे हैं इस पूरे ब्लास्ट को और परिवार के तौर पे क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? ऐसा है जी, हम तो परिवार के तौर पे ये ले रहे हैं प्रिकॉशन, आगे कमरे को बंद रख के जब ही रहा जाए, क्योंकि हेल्थ इशू सभी के साथ है और सीनियर सिटीजन होने की वजह से अस्थमेटिक या वैसी प्रॉब्लम है। और तो बच्चों को थोड़ा सा, छोटे बच्चे हैं उनकी केयर, छोटे बच्चों की कैसे केयर करेंगे? जाहिर तौर पे वो बच्चे हैं, बाहर जिद करेंगे खेलने की ग्राउंड में, और जिस दिन ब्लास्ट होगा उस दिन तो धूल का गुब्बार रहेगा, काफी देर तक रहेगा। हाँ जी, उन्हें बच्चों को जो है 1-2 दिन जो है घर के अंदर ही रखेंगे और एसी चला के रखेंगे, जिससे जो है बच्चे सेफ रहे। ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇहद ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। एडिफिस इंजीनियरिंग के मयूर मेहता हैं, इंजीनियर हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल एक है कि जो धूल का गुब्बार उठेगा उसे कैसे रोका जाएगा? क्या कुछ तैयारी है? कोई तैयारी उसके लिए है नहीं। हम किसी की भी जान उसमें खतरे में डाल नहीं सकते, फायर टेंडर भी लगा नहीं सकते। धूल का गुब्बार उड़ना है, ना हेलीकॉप्टर्स लगा सकते क्योंकि नो फ्लाइंग जोन ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है ध्वस्त के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद। सो धूल के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर, तो इसको धूल कितनी देर तक रहेगी और कितनी एरिया कवर करेगा वो धूल? डिपेंड्स अपॉन द विंड प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन ऑन दैट डे, बट इट एस्टिमेटेड टाइम इज 10 to 12 minutes। सर, कुछ मतलब एरिया आसपास का कितने किलोमीटर तक वो धूल का गुब्बार रह सकता है स्टडी के दौरान? आपको पहले जवाब में ही बोल चुका कि विंड प्रेशर उस दिन कौन से डायरेक्शन में है, वो डायरेक्शन में कहां तक जा सकता है ऐसा कोई अनुमान लगा नहीं सकते आप। सर, पत्र भी लिखा गया है डीजीसी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को? हाँ, सुपरटेक की तरफ से ईमेल्स गए हैं, वाया पोस्ट ऑल्सो लेटर हैज बीन सबमिटेड टू देम टू फॉर नो फ्लाई जोन। सर, लगभग कितना देर है आपने जो ड्यूरेशन बताया नो फ्लाइंग जोन का? हाफ एन आवर। शुक्रिया बातचीत के लिए। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये एपेक्स और सियान है, टावर है, इन्हीं को ध्वस्त किया जाएगा। एपेक्स जो है वो 32 मंजिला है, सियान 28 मंजिला है, इन्हीं को ध्वस्त किया जाएगा। 28 तारीख को समय निर्धारित है 2:30 बजे और 9 सेकंड में ये जमींदोज हो जाएंगे।